Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine. So today's topic is division. What is division? Division is the repeated subtraction of a number from another volume. We write 36 divided by 12 is equals to 3 since 12 can be subtracted 3 times from 36. That means 36 minus 12 is equals to 24, 24 minus 12 is equals to 12 and 12 minus 12 is equals to 0. In 36 divided by 12 is equals to 3. 36 is the dividend, 12 is the divisor and the 3 is the quotient. Note that 36 is equals to 12 multiplied by 3. When a number cannot be divided fully by another number, a remainder is left over. For example, in 46 divided by 9, the quotient is 5 and the remainder r is equals to 1. This means 46 is equals to 9 multiplied by 5. 9 multiplied by 5 is 45 और हमारा है 46 plus 1, that is the remainder. So, dividend is equals to divisor multiplied by quotient plus remainder. Now, dividing 4 equally between. Now, 4 को हमें divide करना है तो 4 को हमने दोनों को 1 1 दिया तो 4 minus 2 is equals to 2. 2 हमारा लेफ्ट है, अगेन 1 1 दिया दोनों को तो 2 minus 2 is equals to 0 और you can say 4 divided by 2 is equals to 2. When there is no remainder, remainder is 0. As in 36 divided by 12 is equals to 3, dividend is equals to divisor multiplied by quotient. Now, properties of division. When we write 56 divided by 8 is equals to question mark, we mean how many times can 8 be subtracted from 56 or into many groups of 8 can we divide 56? The answer is 7 as 7 multiplied by 56. In the same way 12 divided by 0 is equals to what? Would mean how many times can 0 be subtracted from 15 as 0 subtracted from a number gives the same number. One would have to go on subtracting endlessly without getting on answer. So, cannot divide by 0. इसलिए हम किसी भी नंबर को 0 से divide नहीं कर सकते. And 6 divided by 1 is equals to 6. 148 divided by 1 is equals to 148. 59,581 divided by 1 is equals to 59,581. That means number divided by 1 is equals to same number. Number divided by same number is equals to 1. नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया, दैट मीन्स 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 1. 148 डिवाइडेड बाय 148 इज इक्वल्स टू 1. 59,581 डिवाइडेड बाय 59,581 इज इक्वल्स टू 1. नाउ 0 डिवाइडेड बाय नंबर is equals to 0. 0 divided by 9 is equals to 0. 0 divided by 740 is equals to 0. 0 divided by 9,518 is equals to 0. Division by a 2-digit number. Divide 75 by 15. 75 को 15 से डिवाइड करेंगे. सेम डिवीजन का जो हमारा पैटर्न है, 75 को डिवाइड करेंगे हम 15 से. 15 की टेबल में 75 कहाँ पे आता है? 5 जा पे, तो 15 5 जा 75 माइनस क्या? दैट इज 0. तो क्वोशंट हमारा कितना आया? 5. द डिविडेंड कैन नॉट बी लेस देन द डिवाइजर, सो ऑलवेज टेक द राइट नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द डिविडेंड. In the same on the left, we start with 2 digits of the dividend. In the sum on the right, we start with 3 digits. Now divide 145 by 16. 145 को डिवाइड करना है हमें 16 से. 16 की टेबल में 145 नहीं आता. 16 की टेबल में 9 जा पे 144 आता है. तो माइनस क्या? 144. हमारा रिमाइंडर रहा 1. सो क्वोशंट इज इक्वल्स टू 9 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1. नाउ डिवाइड 416 बाय 13 एंड चेक द आंसर. करते हैं इस क्वेश्चन को. 13 से हमें डिवाइड करना है 416 को, तो पहले 2 डिजिट्स लेंगे. तो 13 3 जा 39 माइनस किया 2 आया. नाउ ब्रॉट डाउन 6, इट बिकम्स 26. 13 2 जा 26. 26 माइनस 26 इज इक्वल्स टू 0. नाउ quotient is equals to 32 and remainder is equals to 0. The answer is correct if
डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड। तो हमारा कितना है, डिवाइजर इज इक्वल्स टू 13, कोशेंट इज इक्वल्स टू 32। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस रिमाइंडर इज 0, दैट इज इक्वल्स टू 416। दैट मीन्स द आंसर इज करेक्ट। नाउ note the different ways of writing a division sum. Now next is divide 5383 by 26 and check the answer. 5383 को 26 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम 2 डिजिट लेंगे 52, 26 2 जा 52, माइनस किया 1, ब्रॉट डाउन 8, 18, 18 इज लेस देन 26, तो 26 0 0 माइनस किया 18, नाउ ब्रॉट डाउन 3, इट बिकम्स 183। 26 की टेबल में जब हम करेंगे तो 183 नहीं 182 आता है 7 पे, तो 26 7 जा 182 माइनस किया दैट इज 1। नाउ कोशेंट इज इक्वल्स टू 207 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1। द आंसर इज करेक्ट इफ डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड। तो हमने किया 26 मल्टीप्लाई बाय 207 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5383। The answer is correct. To get the quotient, first try division with smaller numbers. Think 5 divided by 2 is equals to 10. As 2 into 2 is equals to 4, the quotient can be 2. 1 पार्ट 5। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जब हम खुश होते हैं तो बेहतरीन तरीके से अपने हर कार्य पूरे करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय। तो आज का अध्याय हमारा है संज्ञा के विषय में, यानी कि नाउन पढ़ेंगे हम आज। तो संज्ञा किसे कहते हैं, आइए चित्र के माध्यम से जानें। देखिए सामने चित्र दिया गया है। क्या आपको इसमें कोई ऐसी वस्तु दिखाई देती है जिसका कोई नाम हो? अब आप अपने आसपास देखिए, क्या आपको कोई वस्तु या व्यक्ति ऐसा दिखता है जिसका कोई नाम ना हो? देखिए वास्तव में हर वस्तु या व्यक्ति का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है ना? तभी तो आप उस वस्तु को पहचान पाते हैं। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका नाम ना हो, इसी नाम से उस वस्तु की पहचान होती है। हर लड़के, लड़की या आदमी का कोई ना कोई नाम होता है। व्याकरण में इन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, इमारत, गुण, अवस्था या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए जान लेते हैं। जैसे कि चित्र दिए गए हैं सामने व्यक्तियों के नाम। जैसे व्यक्तियों के नाम है साइना नेहवाल, चंद्रशेखर आज़ाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये नाम है किसी का। मेरा नाम, आपका नाम, ये सब भी संज्ञा है। ये पेन, इसका नाम पेन है, तो ये इसका नाम दिया गया है, तो ये संज्ञा है। दूसरा है प्राणियों के नाम। प्राणी देखिए जैसे कि लड़का, लड़की, गाय, पशु, पक्षी, ये सब क्या है, प्राणी हैं। तो ये इनके भी नाम होते हैं ना, तो ये सब भी संज्ञा शब्द कहलाते हैं। आगे वस्तुओं के नाम, जैसे कि कुर्सी, कलम, पंखा, टेबल, पेन, पेंसिल, आपका रबड़, ये सब क्या हैं, वस्तुएं हैं। जिनमें जान नहीं होती वो वस्तु होती हैं। और इमारतों के नाम, जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार, हवा महल, ये सब इमारतें हैं और जगह हैं, तो ये क्या हैं, आपके संज्ञा शब्द कहलाएंगे। आइए कुछ स्थानों के, नदियों के, पहाड़ों के नामों को भी जान लेते हैं। जैसे स्थानों के नाम है दिल्ली, आगरा, मुंबई, कानपुर, सब संज्ञा शब्द हैं। नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, ये भी सब संज्ञा है। पहाड़ों के नाम जैसे कि हिमाचल, विंध्याचल, एवरेस्ट, ये सब भी संज्ञा आते हैं। देशों के नाम संज्ञा में आते हैं, जैसे कि भारत, चीन, जापान, अमेरिका। राज्यों के नाम भी संज्ञा होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार आदि। और सागरों के नाम भी संज्ञा होते हैं, जैसे अरब सागर, हिंद महासागर, ये सब भी संज्ञा है। क्योंकि सबका अपना कोई ना कोई नाम है, तभी हम उन वस्तुओं को, चीज़ों को पहचान पाते हैं। इसीलिए वे नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। अब गुणों के भी नाम होते हैं, ये भी संज्ञा में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे कि ईमानदारी, परिश्रम, सफाई, कोमलता, सुगंध, ये सब क्या हैं, आपके संज्ञा शब्द हैं। आगे देखिए जैसे कि अवस्थाओं के नाम, देखिए प्रसन्नता, बुढ़ापा, मिठास, खटास, ये सब अवस्थाएं हैं, तो ये सब भी क्या होती हैं, संज्ञा शब्द ही होते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा अध्याय समाप्त हुआ। इसमें हमने संज्ञा के बारे में जाना। बाकी की आगे की नॉलेज जो है वो आप अगली क्लास में लेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही जानना है। आइए अब ये जान लेते हैं कि हमने क्या सीखा, यानी कि इसे पुनः एक बार दोहरा लेते हैं।
तो बच्चों, हमने इस अध्याय में सीखा कि किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, इमारत, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के अनेक प्रकार होते हैं। हंसी, खुशी, दुख, बुढ़ापा, मिठास आदि भी संज्ञा के रूप ही हैं। आइए, अब जो अध्याय में जान लिया है, प्रश्न उत्तर पे उतार लेते हैं। आते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। खंड क में पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो व्यक्ति का नाम है नवीन, कुर्सी, हवामहल। बिल्कुल सही, व्यक्ति का नाम तो नवीन है, तो नवीन पर सही का निशान लगा दीजिए। बाकी के प्रश्न भी इस प्रकार कीजिएगा, सही विकल्प पर सही निशान लगाइएगा। अब दूसरे प्रश्न पर यहाँ मौखिक उत्तर देना है आपने। पहला प्रश्न, अपनी कक्षा को ध्यानपूर्वक देखिए और 5 संज्ञा शब्द बताइए। तो बड़ा ही आसान है। आपकी कक्षा में क्या क्या दिखता है आपको? शाम पर तो दिखता ही है ना, ब्लैक बोर्ड को कहते हैं आप। डस्टर दिखता है आपको, कुर्सी दिखती है, टेबल दिखती है, बॉटल दिखती है, टिफिन बॉक्स दिखते हैं, है ना। तो जो जो आपको चीज़ें दिखती हैं वो 5 संज्ञा आप यहाँ पर बताएंगे। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार, उसका भी मौखिक उत्तर ही दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम खंड ख में। इसमें पहला प्रश्न आ रहा है, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इनमें से संज्ञा शब्दों को छांटकर उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। यहाँ लिखा है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव। तो ऊपर शब्द चुनने आपने। पहला व्यक्ति का नाम चुनिए। तो व्यक्ति का नाम बताइए। जैसे लक्ष्मीबाई किसी व्यक्ति का नाम ही है ना। लक्ष्मीबाई क्या थी? रानी थी। तो मैंने लिख दिया यहाँ व्यक्ति का नाम लक्ष्मीबाई। वस्तु का नाम लिखना होगा, तो कौन सी वस्तु लिखूं बताओ? स्थान अगर आप बोलेंगे तो स्थान क्या है? चलो मैंने यहाँ लाल किला लिख दिया, ठीक है। भाव बताइए। ईमानदारी या खुशी, ये सारे भाव में आते हैं, यहाँ मैंने भाव लिख दिया। अब वस्तु का नाम मैं लिख देती हूँ यहाँ पर अपनी मर्जी से, जब मैंने पेन लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार आपने सारी चीज़ों के नाम उचित स्थान पर लिखने हैं। बाकी के भी इसी तरह छाट कर लिखिएगा आप। दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। क्या लिखना है इसमें आपने? वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे रेखाएं खींचनी है। तो पहला वाक्य है, मोहन मेरा छोटा भाई है। तो संज्ञा शब्द क्या है बच्चों इसमें? मोहन। लो, मैंने मोहन में लाइन खींच दी है। बस इसी प्रकार बाकी वाक्यों में भी आप संज्ञा शब्द पे लाइन खींचिएगा। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। निम्नांकित चित्रों को देखकर लिखिए कि ये किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब ये पहला चित्र दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब ये किसके अंतर्गत आते हैं बताइए? यह व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है ये। आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे। आप आगे के भी स्वयं कीजिएगा। देखकर लिखिए कि ये किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब ये पहला चित्र दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब ये किसके अंतर्गत आते हैं बताइए? यह व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है ये। आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे। आप आगे के भी स्वयं कीजिएगा। देखकर लिखिए कि ये किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब ये पहला चित्र दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब ये किस बताइए? यह व्यक्ति का, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है ये। आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे। आप आगे के भी स्वयं कीजिएगा। देखकर लिखिए कि ये किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब ये पहला चित्र दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब ये किस बताइए? यह व्यक्ति का वाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे। आप आगे स्वयं कीजिएगा। के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब ये चित्र दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब ये किस है? व्यक्ति का वाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे। आप आगे स्वयं कीजिएगा। के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब ये चित्र दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब ये किस
व्यक्ति का वाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक पढ़ेंगे। अब आगे स्वयं कीजिएगा। के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब ये लाल नेहरू का, अब ये किस पढ़ेंगे। अब आगे स्वयं कीजिएगा। के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब ये लाल नेहरू का, अब ये किस पढ़ेंगे। अब आगे प्रश्न पर आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित चित्रों को देखकर लिखिए कि ये किसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको 4 चित्र दिए गए हैं, आपने लिखना है ये। So 13 3 जा 390 माइनस किया 9 is the remainder. So quotient is 3, remainder is 9. और overall quotient is 203 and remainder is 9. Now divide 2,45,989 by 543. 543, तो यहाँ पे हमारी 3 डिजिट को जब हमने लिया 245 इज लेस देन 543, सो स्टार्ट विद 2459 एज द डिविडेंड। इसलिए हमें स्टार्टिंग की 4 डिजिट्स लेनी पड़ेंगी। तो 24 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 5 जा 25, तो 5 4 जा 20, तो यहाँ हम 4 जा पे लिया, दैट इज 2172। सो क्वोशंट ऑफ दिस स्टेप इज 4 एंड रिमाइंडर 2172 को हमने माइनस किया, हमारा रिमाइंडर आया 287। नाउ ब्रॉट डाउन 8, हमने 8 को नीचे लेके आए, इट बिकम्स 2878। 28 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 जा 20, 5 5 6 जा 30, तो 6 जा पे गए तो 30 और 5 5 जा 25, तो 5 पे जाएगा। 543 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 2175। तो क्वोशंट ऑफ दिस स्टेप इज 5 एंड रिमाइंडर, तो यहाँ पे हमने क्वोशंट हमारा 5 आया और 2715 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा रिमाइंडर 163। नाउ ब्रॉट डाउन 9, 9 को हम नीचे लेके आए 1639, तो 16 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो 543 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 1629। 1629 एग्जैक्ट बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 हमारा क्वोशंट रहेगा और माइनस करने के बाद हमारा रिमाइंडर इज 10। सो क्वोशंट इज 453 and remainder is 10. Now exercise 5.2. Question number 1. Write the quotient and the remainder. A part, 73 divided by 10. 10 में 1 zeros है, तो लास्ट की 1 डिजिट इज द रिमाइंडर एंड रिमेनिंग पार्ट इज द 7 इज द क्वोशंट। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। हिंदी बुक 1 पार्ट 7। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। बिल्कुल बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, यही तो जीवन जीने का आधार है। जब हम खुश होते हैं तो शारीरिक और मानसिक विकास बड़े अच्छे प्रकार से होता है। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय। हमारा अध्याय है वचन के बारे में। हमारे अध्याय का नाम है वचन यानी कि नंबर। इसमें आप जानेंगे कि वचन किसे कहते हैं। तो आइए इसे समझने के लिए चित्रों को माध्यम बनाते हैं। 4 चित्र हमारे सामने दिए गए हैं, उन्हें देखकर उनके नीचे लिखे गए शब्द पढ़ते हैं।
पहला है घोड़ा, दूसरा घोड़े, तीसरा पतंग और चौथा है पतंगे। अब समझने वाली बात इसमें है कि घोड़ा और पतंग, घोड़ा और पतंग ये शब्द क्या है, एक एक संख्या का बोध करा रहे हैं। देखो इस चित्र में एक ही संख्या दी गई है, एक ही घोड़ा और एक ही पतंग। और घोड़े और पतंगे, देखिए घोड़े और पतंगे इसमें क्या है, एक से अधिक संख्या में है, घोड़े भी और पतंगे भी। तो इससे क्या पता चल रहा है बच्चों, अर्थात संज्ञा शब्द का वह रूप जो संख्या का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। अब वचन के कितने भेद होते हैं बच्चों, वचन के होते हैं दो भेद, एक वचन और बहुवचन। आइए जाने एक वचन क्या है। तो बच्चों शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कि बतख और गुब्बारा, देखिए एक एक ही है ना, तो ये क्या है, एक वचन। अब आता है दूसरा भेद, बहुवचन। तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कि बतखें और गुब्बारे, बतखें और गुब्बारे। तो आइए ऐसे ही कुछ शब्द पढ़ते हैं एक वचन और बहुवचन के, आप इन्हें याद करने की या समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि आँख एक वचन है, आँखें बहुवचन, रात रातें बहुवचन हो गया, नाव नावें बहुवचन, पुस्तक पुस्तकें बहुवचन हो गया। अगला है मेज, मेज मेज़ें बहुवचन, जूता और उसका बहुवचन जूते, गेंद गेंदें, घोड़ा घोड़े, बतख बतखें और तोता तोते, ये बहुवचन शब्द हो गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ एक वचन और बहुवचन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इसे पुनः दोहरा लेते हैं अध्याय को। तो हम जानेंगे अब तक हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि संख्या यानी कि संज्ञा की संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन या बहुवचन। एक वचन शब्दों से एक संख्या का बोध होता है और बहुवचन शब्द दो या दो से अधिक संख्या का बोध कराते हैं। तो इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हुआ। अब हम बढ़ेंगे प्रश्नावली की ओर। अभ्यास प्रश्न पर आते हैं बच्चों, जो पाठ से संबंधित है। खंड क, पहला प्रश्न, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसमें पहला वाक्य आता है, यह शब्द बहुवचन को प्रकट करता है। कौन सा शब्द है, बस्ता, चूहे, लड़का। बिल्कुल सही, दूसरा वाला विकल्प सही है, चूहे, इससे बहुवचन का पता लग रहा है। बाकी भी प्रश्न पढ़कर सही विकल्प चुनिएगा आप। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताइए, मौखिक उत्तर देना है इसमें। वचन को उदाहरण सहित स्पष्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें उत्तर देंगे आप, संख्या के जिस रूप से एक वचन यानी कि संख्या के एक या बहुवचन में होने का पता लगता है, यानी कि संख्या के एक या अधिक होने का पता लगता है, वह वचन कहलाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न पढ़कर उत्तर दीजिएगा। हम खंड ख में आते हैं। पहला प्रश्न है, चित्र देखकर संख्या लिखिए। चित्र देखकर आपने संख्या लिखनी है। अब यहाँ पर कितने घोड़े आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, तो मैं लिख दूंगी यहाँ 3 घोड़े। घोड़े लिखा हुआ है, सिर्फ संख्या लिखनी है। बाकी के भी दोनों चित्र देखिए और वहां पर संख्या लिखिएगा नीचे। अगला प्रश्न है, वचन बदल कर लिखना है। ठीक है, एक वचन है तो बहुवचन लिखिए और बहुवचन है तो एक वचन लिखिए। जैसे गुब्बारा, गुब्बारा तो एक वचन है, इसका बहुवचन लिखना होगा तो लिख देते हैं यहाँ गुब्बारे, गुब्बारे हो गया ये। बाकी के भी शब्द इसी प्रकार पढ़कर एक वचन और बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों के वचन लिखने हैं कि एक वचन में है कि बहुवचन में है। अब कमरे, कमरे से क्या पता लग रहा है, बहुवचन। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं हम बहुवचन। ये हो गया, चलिए हो गया ये। तो इसी प्रकार बाकी के भी शब्द पढ़कर एक वचन और बहुवचन सामने लिखिए। चौथे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखित रूप में देने हैं, यानी कि लेखन कौशल दिखाना है अपना यहाँ पर। पहला प्रश्न है, वचन किसे कहते हैं। संज्ञा के किसी रूप से संख्या के एक या उससे अधिक होने के बारे में पता चलता है, वह वचन कहलाता है। इस प्रकार बाकी के दोनों भी प्रश्नों को पढ़कर इसी प्रकार लिखित उत्तर आप दीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ वचन अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभ्यास प्रश्न भी बड़ी आसानी से आपने कर लिए, इसका मतलब अध्याय समझ में आया है। बस इसी प्रकार अभ्यास जारी रखना है आपने लगातार। तो अभ्यास करते रहिए और स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और मस्त रहिए। अध्याय समझ में आया, अभ्यास जारी रखना और मस्त रहिए।
बुक 1 पार्ट 8। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हुआ? हिंदी बुक हिंदी व्याकरण पाठ 1